Hello students, I Karan Kumar Jha from Oriental Public School welcome you to the online platform of the same. Today we are going to discuss class 12th biology organisms and population chapter in which we will be discussing about the population interaction. Let us say suppose here is one population and here is another population. The individuals from this population and one individual from this population, they may interact with each other for food, shelter and mating partners. If such type of population interaction occurs between two different populations, then it is known as interspecific population. And there is one more type that is known as intraspecific population. Intraspecific population means the interaction between two organisms A and B belonging to the same population, that is the same species, that is known as intraspecific interaction. And if here is one population and here is another population, let us say there is an organism C. If an organism from this population interacts with an organism from this population, then it is said to be interspecific population. सो जब एक इंट्रैक्शन होता है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, दो पॉपुलेशन या फिर दो ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम पॉपुलेशन के बीच में, तो वहाँ पर वो इंट्रैक्शन जो है ना दोनों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है या फिर दोनों के लिए हार्मफुल डेट्रीमेंटल हो सकता है, या फिर एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरा को हार्मफुल या फिर फ़ायदेमंद बेनिफिशियल हो सकता है. यहाँ पर हम लोग देखेंगे 6 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन इंट्रैक्शन. The 6 types of population interaction are mutualism, competition, parasitism, predation, communalism and amanilism. So let us talk about the predation first. So here predation means क्या होता है? It is a type of population interaction in which an organism of higher trophic level feeds upon an organism of lower trophic level. एक हायर ट्रॉपिक लेवल वाला ऑर्गेनिज्म जो है ये लोअर ट्रॉपिक लेवल वाला ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करेगा. फॉर एग्जांपल हियर लेट अस से इन ए टेरेस्ट्रियल फूड चेन, इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड फूड चेन, देयर इज ग्रास इज ईटन अपॉन बाय द डियर इज ईटन अपॉन द टाइगर. सो नाउ हियर दिस टाइगर बिलोंग्स टू ए हायर ट्रॉपिक लेवल देन द डियर. इफ दिस टाइगर कंज्यूम्स द डियर, then here this type of interaction will be known as predation. The tiger here is the predator and the deer is said to be the prey, what we call in Hindi as shikar and shikari. So deer is the shikar here and tiger is the shikari here. So you see herbivores जो होते हैं, herbivorous animals, they are also a type of predator. They are not less than a predator. How? Because they feed upon the grass. Grass belongs to a lower trophic level and these herbivorous animals जो होता है they belong to a higher trophic level. So ये grass जो है ये हो जाता है prey और ये herbivores जो है ये बन जाता है predator. So herbivorous animal here is acting as predator. Now you see, predators are very much important to our ecosystem. So what are the importance of predators that we will be discussing now? Let us see here one by one. पहला तो ये है कि predator जो है ये population कंट्रोल करता है किसका? प्रे का. अगर कहीं पर एक प्रे का पॉपुलेशन है तो वो प्रे का पॉपुलेशन जो है कंट्रोल में रहेगा किसके कारण से? प्रेडेटर के कारण से. प्रेडेटर उसको फीड करेगा और पॉपुलेशन को एकदम स्टेबल बना के रखेगा. किसका पॉपुलेशन को? प्रे का पॉपुलेशन को. दिस इज वन सिग्निफिकेंस, वन रोल ऑफ प्रेडेटर इन एन इकोसिस्टम. दूसरी बात यह है, सपोज लेट अस से सपोज हियर देयर इज ए फूड चेन अगेन. ग्रास ईटन बाय द ग्रास हॉपर बाय द frog. Grass is being eaten here by the grasshopper again by the frog. So now here ये grass जो है ना, grass is a predator किसके लिए? grass के लिए. grass जो है prey है, grasshopper जो है predator है. तो ये grasshopper जो है ये grass से frog में एनर्जी ट्रांसफ़र करने का काम करता है ना.
अगर यहाँ पर ये ग्रास होपर नहीं होता, इफ़ देयर इज़ नो ग्रास होपर, देन ग्रास से फ्रॉग में एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होता, बिकॉज फ्रॉग डज नॉट ईट ग्रास. दैट इज़ वाई वी कैन से that a predator acts as a passage for transfer of energy across trophic levels. And third point here is that predator जो है ना ये क्या करता है, स्पेसिस का डाइवर्सिटी भी मेंटेन करके रखता है. किस तरह से? यहाँ पर अगर एक प्रीडेटर है, सपोज यहाँ पर एक लायन और टाइगर है, हियर इज ए लायन एंड टाइगर. सो ये लायन एंड टाइगर जो है ना ये क्या करेगा, ये जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, डिफरेंट प्रे को फीड कर सकता है. For example, it can feed upon the rabbit, it can feed upon the jackal, it can feed upon the cats, dogs, etc. etc. अगर ये लायन ही ना रहे, if there is no lion, then what will happen? ये सब rabbit, jackal, cats, dogs, ये सब जो है ये सब का पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगा. एंड उससे क्या होगा फिर, ये सब के बीच में, आपस में ये सब के बीच में फूड, शेल्टर एंड मैट्स के लिए कंपटीशन होगा. ये सब के बीच में रैबिट, जैकल, कैट्स, डॉग्स, ये सब के बीच में. तो इससे फिर क्या होगा, इससे यहाँ पर कुछ स्पेसिस जो है प्रे का वो अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएगा. ऐसा जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया गया है. नॉर्थ अमेरिकन का पैसिफिक कोस्ट पे भी एक पिजास्टर नाम का स्टारफिश रहता था, और वो जो है प्रीडेटर हुआ करता था. पिजास्टर, PISASTER, नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट पे, पैसिफिक कोस्ट पे. जब उस पिजास्टर स्टारफिश को वहाँ से उस पैसिफिक कोस्ट से रिमूव कर दिया गया, तो ये पता चला कि लेस देन ए डिकेड, यानी कि 10 साल के अंदर में ही मोर देन 10 स्पेसिस ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल जो है ना, जो कि प्रे था पिजास्टर का, एक्सटिंक्ट हो गया. सो ए प्रीडेटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्पेसिस डाइवर्सिटी बाय रिड्यूसिंग, क्या करके, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन बिटवीन द प्रे. एक प्रे और दूसरा प्रे के बीच में ना कंपटीशन जो है ना, कंपटीशन को घटाता है, कंपटीशन नहीं होने देता है, और इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन जो है इसको कम करता है. अब देखो यहाँ पर, अगर एक प्रीडेटर एक प्रे को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करता है, तब फिर क्या होगा, प्रे पॉपुलेशन विल कोलैप्स एंड मेनी प्रे विल ऑल्सो एक्सटिंक्ट. तो यहाँ पर जो है प्रे सब जो है, व्हाट डू दे डू, प्रेस अंडरगो मेनी मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस इनसाइड देम टू एस्केप फ्रॉम द प्रीडेटर से बचने के लिए. यहाँ पर अभी हम लोग वही सब एडाप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे. दिस आर ऑल अबाउट एडाप्टेशन. तो नंबर 1 हियर यू सी, बहुत सारे इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स भी क्या करता है, कैमोफ्लेज करता है. कैमोफ्लेज, व्हाट डज इट मीन? कैमोफ्लेज मीन्स, you might have seen the color of the chameleon changes with respect to the surrounding environment where it goes. जहाँ पे वो रहता है वहाँ उस environment के हिसाब से उसका जो है कलर बॉडी का चेंज होगा, उसका स्किन कलर चेंज होगा. सो कैमोफ्लेज जो है एक मैकेनिज्म है, इन्वायरमेंट से, बैकग्राउंड इन्वायरमेंट जो है उसका कलर के साथ वो अडाप्ट करके अपना स्किन का कलर जो है अडाप्ट कर पाना, ताकि वो छुप सके. फ्रॉग्स जो है, फ्रॉग्स आर ग्रीन इन कलर, सो दे लिव इन ग्रीन ग्रास, अमंग द ग्रीन ग्रास, ताकि सो दैट प्रेडेटर्स कैन नॉट इजीली डिटेक्ट देम. दिस इज वन. अनदर वन इज दैट बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होता है ना, क्या होता है, पॉइजनस होता है, और प्रेडेटर उसको कंज्यूम नहीं कर पाता है. थर्ड पॉइंट इज दैट मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में यहाँ पर है. मोनार्क बटरफ्लाई जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेस्टफुल होता है, खाने में बहुत तीखा लगेगा, डिस्टेस्टफुल होता है, और ये एक फ़ायदेमंद है उसके लिए. इट इज़ बेनिफिशियल टू इट. वाई? बिकॉज प्रेडेटर्स आर नॉट एबल टू कंज्यूम दैम बिकॉज ऑफ द डिस्टेस्टफुल नेचर. अनदर थिंग यू सी, बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है ना, इंसेक्ट्स क्या होता है, इंसेक्ट्स जो है प्रेडेटर होता है बहुत सारे प्लांट्स पे, दे कंज्यूम द प्लांट्स. तो इसीलिए कुछ डिजर्ट प्लांट्स जो है, एकासिया, कैक्टस, ये सब क्या करता है, दे बियर स्पाइन्स एंड थॉर्न्स इनसाइड देम सो एज टू एस्केप फ्रॉम द प्रेडेटर्स. इंसेक्ट से बचने के लिए, हार्बिवरस एनिमल्स जो एकासिया, कैक्टस को कंज्यूम करता है, वो सबसे बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप के अंदर में थॉर्न्स एंड स्पाइन्स बियर करता है. और फिर देखो बहुत सारे प्लांट्स जो है ना, जैसे कि केलोट्रोपिस जलापा,
ये कैलोट्रोपिस जलापा जो प्लांट है, इसके अंदर में कार्डियक ग्लाइकोसाइड नाम का एक मिल्क के तरह कुछ सेक्रेशंस इससे रिलीज होता है, और वही मिल्की सेक्रेशन जो है दैट कंटेन्स कार्डियक ग्लाइकोसाइड विच इज़ वेरी मच हार्मफुल पॉइजनस फॉर द हार्बीवरस एनिमल्स। तो कैलोट्रोपिस जलापा को हार्बीवरस एनिमल्स जो है वो लोग कंज्यूम नहीं कर देता है, छोड़ के चले जाता है। एंड सम मोर थिंग्स आर हियर, वन मोर स्पेशल मैकेनिज्म इज हियर। देखो ये निकोटिन जो होता है, कैफीन जो होता है, क्वाइनिन, ओपियम जो होता है, दिस आर ऑल ए टाइप ऑफ एडाप्टेशन टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स देमसेल्व्स फ्रॉम द प्रीडेटर्स। प्लांट्स जो निकोटिन प्रोड्यूस करता है, कैफीन प्रोड्यूस करता है, ये सब जो है ना प्रीडेटर से बचने के लिए ही होता है। सो अप टू हियर फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट the growth models, there is exponential growth model, logistic growth model. For today only up to this, stay safe in your homes, follow COVID protocols. Thank you so much.